Peace be upon you, students. How are you? Fine? Okay, Allah bless you. Students, as usual, I'm in front of you with a wonderful topic, with a very essential topic, that is simple, compound and complex. Surely you will face this topic in your T2 exams in form of few sentences. You need not write theories on these sentences. You just have to recognize them. You just have to identify them, whether it is simple, compound or complex. Okay, you got it. Dear students, you just give me your cooperation. You have just concentrate on this board. Rest I will make it very easy for you to understand. I will make it very easy to identify, to make you able to identify these sentences in T2 exams. Okay, dear students, in order to understand simple, compound and complex, we will begin right from sentence. I know you are familiar of this word sentence. Sentence is a group of words that makes complete sense. Okay, do you know a sentence is made up of two words, that is subject and predicate. Do you know what is subject and what is predicate? Subject, about whom, the statement is made, जिनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. Predicate tells us what subject does. प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है. ओके, डू यू गॉट इट? ओके, dear students, you must know that subjects are in form of he, she, it, they or any name. इसके बाद हम जाएंगे क्लास पर, CLAUSE, as this is very important factor in simply, compound and complex sentences. Do you got it? Classes are of two types. First of all, we will try to know what's the meaning of class. A class is a group of words. Is a group of words that contains a subject and a predicate. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a class is a group of words that contains a subject and a verb. क्लास जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होती है, या क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है या और एक वर्ब होती है. ओके, क्लासेस आर ऑफ two types, two kinds. Classes are of two kinds. पहला है इंडिपेंडेंट क्लास. अब आप कहोगे सर ये इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास also known as coordinating class, also known as main class. Okay, it can stand
on its own, on its own, as it need not any other class for appropriate meanings. Appropriate meanings, that means ये जो इंडिपेंडेंट क्लास या जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी बोलते हैं, ये हमेशा इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये अपने आप में मुकम्मल होता है, ये खुद ही स्टैंड हो सकता है एज इट नीड्स, इसको जरूरत नहीं होती है किसी और क्लास की फॉर एप्रोप्रिएट मीनिंग्स. ओके, अब हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास, it can't stand on its own. ये इसका अपोजिट है, on its own, as it always depends upon, ये हमेशा मुनस्सिर रहता है किस पर? Always depends upon the मेन क्लास, या जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं. इंडिपेंडेंट क्लास. ओके डियर स्टूडेंट्स, होप यू गॉट इट. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट, जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है, दैट इज टू डिस्कस सिंपल, कंपाउंड एंड complex. We will first underline simple sentence. Simple sentence. I already told you that you just have to identify whether it is simple sentence, compound sentence or complex. Okay? Simple sentence को हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सको. सिंपल सेंटेंस, a sentence that contain a verb, a subject and a verb. सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. बिल्कुल इजी है. कोई भी सेंटेंस जिसमें आप एक सब्जेक्ट देखते हो और आपकी नजरों में एक वर्ब आ जाता है, दैट मींस आपको समझ लेना चाहिए द सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल सेंटेंस. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. She rebuked her younger daughter. She rebuked her younger daughter. अब हमें देखना क्या है? अब हमें यह देखना है, we have to see whether the sentence contains a single subject and single verb. वही देखना हमें. बिल्कुल एक सब्जेक्ट है she rebuked, single verb, she rebuked her younger daughter. Okay, this sentence belongs to simple sentence. दूसरा, I hate nonsense people. I hate nonsense people. मैं अहमक लोगों से नफरत करता हूं. अब हमें क्या देखना है? We have to see single subject and single verb. बिल्कुल single subject, I is subject, hate single verb. That means this sentence also belongs to simple sentence. Third sentence,
we joined the school. We joined the school. Single subject, single verb. That means sentence belongs to simple sentence. Okay. Fourth one, Rahman killed the lion. Rahman killed the lion. Rahman is subject. Okay, is this subject? He, she, it or any name. ये any name में आ जाता है. रहमान killed the lion. रहमान ने शेर को मारा. रहमान is subject. Killed is verb. That means this sentence also belongs to simple sentence. अब आपको ये दिमाग में रखना है, the sentence in which you are noticing single subject and single verb. That means you must know that the sentence belongs to simple sentence. Hope you got it. Dear students, we will go ahead. Now the second is compound sentence. Little bit complicated. Compound sentence. First of all, we will try to know what's compound sentence. A sentence that contains two or more than or two or more clauses, more independent clauses joined by the coordinating conjunctions like for, or, yet, so, and, but, etc. ओके, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. कंपाउंड सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं दैट कंटेन्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो, दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस हो या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो, जिनको ज्वाइन होते हो किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जो कि फॉर है, जो कि और है, यट है, सो है, एंड है, बट है, etc. Okay, we'll give you an example so that you could understand. I like cricket. But my brother does not like cricket. हमने ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है? वो सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो. अब हम देखेंगे इसमें दो क्लॉजेस हैं और वो दोनों क्लॉजेस जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं. पहला, आई लाइक क्रिकेट. अगर हम यहां पर फुल स्टॉप भी लगाएंगे, ये मीनिंग देता है. आई लाइक क्रिकेट बिल्कुल सही मीनिंग देता है. हाँ, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन.
ये बिल्कुल मुकम्मल सेंटेंस है। आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूं। माई, बट को हम रहने देंगे अभी। माई ब्रदर डज नॉट लाइक क्रिकेट, माई ब्रदर डज नॉट लाइक क्रिकेट, ये भी मुकम्मल है। कैसे मुकम्मल है आप देखिए, माई ब्रदर सब्जेक्ट भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है, डज नॉट लाइक और वर्ब भी है। दैट मीन्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो वो क्लास कहलाया जाता है। ओके, इसमें भी अगर हम देखेंगे, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब भी है, दैट मीन्स बोथ सेंटेंस, बोथ क्लास आर इंडिपेंडेंट। अब हमने इस सेंटेंस को, इस दो सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में बदला है बाय द हेल्प ऑफ कंजक्शन, बाय द हेल्प ऑफ कंजक्शन। आई लाइक क्रिकेट बट माई ब्रदर डज नॉट लाइक क्रिकेट, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो और वो दो इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइन होते हैं कंजक्शन से, किसी भी कंजक्शन से, वो सेंटेंस जो है वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाया जाता है। ओके, दैट मीन्स दिस सेंटेंस जिसमें दो क्लास है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू कंपाउंड सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इसमें दो क्लासेस पाए जाते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस पाए जाते हैं। ओके, सेकंड सेंटेंस अगर हम देखेंगे, she neither looks beautiful, she neither looks beautiful nor she looks scary। वो ना ही खूबसूरत दिखती है और ना ही डरावनी दिखती है। अब हम देखेंगे ये दो क्लासेस है, आया ये इंडिपेंडेंट क्लासेस है कि नहीं? she neither looks beautiful, बिल्कुल। अगर हम यहां पर फुल स्टॉप भी लगाएंगे तब भी ये बिल्कुल मायने देता है। दिस इज मीनिंगफुल सेंटेंस। she neither looks beautiful, वो खूबसूरत नहीं दिखती है। she neither looks beautiful nor, कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर हम इसको देखेंगे, इस वाले सेंटेंस को, she looks scary, ये भी अपने आप में मुकम्मल है। दिस सेंटेंस कैन स्टैंड इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। ओके, nor she looks scary। अब हमने इसको सिंगल सेंटेंस में बदला है विद द हेल्प ऑफ दिस कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। she neither looks beautiful, एक क्लास है इंडिपेंडेंट क्लास, she looks scary ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, हमने इसको नॉर से जोड़ दिया है, ज्वाइन किया है। she neither looks beautiful, ना तो वो खूबसूरत दिखती है, nor she looks scary, ना वो डरावनी दिखती है। ओके, तीसरा सेंटेंस, Ajaz worked hard, yet he failed, एजाज ने मेहनत की, ताहम ही फेलड, फिर भी वो फेल निकला। अगर हम देखेंगे ये वाला क्लास यहां से लेकर यहां तक, अब इस कंजक्शन को हम छोड़ देंगे। एजाज वर्कड हार्ड, एजाज ने मेहनत की, बिल्कुल। इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। दिस इज मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट फ्रॉम राइट हियर। ओके, एजाज वर्कड हार्ड, एजाज ने मेहनत की, ही फेल्ड। दिस आल्सो गिव्स कंप्लीट सेंस, वो फेल निकला। It can also stand on its own. Okay, this is also independent clause. But हमने इसको एक सेंटेंस बनाया with the help of coordinating conjunction yet. हाँ, एजाज वर्कड हार्ड, एजाज ने मेहनत की, yet he failed, फिर भी वो फेल निकला। That means this sentence जिसमें दो से
ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइन होते हैं with the help of coordinating conjunction से, that sentence belongs to compound sentence. Okay, लास्ट वाली एग्जांपल देंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझो. फोर्थ वाली एग्जांपल है the sun shone. The sun shone and the fog disappeared. And the fog disappeared. इसको पहले समझने की जरूरत है. हम देखेंगे whether this sentence contain two independent clause or not. First one, the sun shone. बिल्कुल सूरज चमकता. The sun shone. सूरज चमकता. The sun shone. The fog disappeared. धुंध गायब हो गई. धुंध गायब हो गई. The fog disappeared. ये भी मुकम्मल है. Can also stand on its own. बिल्कुल सही सेंटेंस है. Fog subject, okay, disappeared verb है ना. That means जिसमें एक सब्जेक्ट और एक सिंगल वर्ब पाई जाती है, वो क्या, वो क्लास कहलाया जाता है. That means this is independent clause. अगर हम यहां पर देखेंगे the sun is subject and shone is verb. इसमें भी सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब है. सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब है. That means both the sentences, both the clauses are independent. Both the sentences can stand on its own. Okay, but we have to make this sentence a single sentence with the help of conjunction. That is and. Okay, coordinating conjunction. The sun shone and the fog disappeared. सूरज चमका और धुंध गायब हो गई. Hope you got it, students. अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला देता हूं जिससे आप लोगों को बिल्कुल इजी हो जाएगा to identify compound sentences. Okay, dear students, आप लोगों को क्या करना है, एक नजर दौड़ानी है. बस आप लोगों को पता चलेगा कि sentence belongs to compound sentence. Okay, formula is जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं, बॉड मास वगैरह वगैरह. इसमें भी एक फॉर्मूला है, वो है फैन बॉयज. BOYS. F means for, A and, N means nor, B means but, O means or, Y means yet and S means so. अब आपको क्या करना है, this is formula to identify the compound sentence within seconds. अगर आपको पहचानना है कंपाउंड सेंटेंस, अगर आपको इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंसेस को जुड़ते हुए आप लोग देखते हो, कोई भी सेंटेंस को अगर आप देखते हो इनसे जुड़ा है, आप लोग को समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस बिलोंग्स टू कंपाउंड सेंटेंस. ओके, अगर आप लोग इनमें से कोई भी कंजक्शन देखते हो, किसी सेंटेंस को, दो सेंटेंस को, तीन सेंटेंस को आपस में जोड़ते हुए, मींस आप लोग को यह समझ में लेना चाहिए कि सेंटेंस बिलोंग्स टू कंपाउंड सेंटेंस. डू यू गॉट इट? होप यू गॉट इट. Dear students, we will now meet. I shall now catch you in next part with another sentence that is complex sentence. It's a little bit complex to understand, so that we will meet in next video, in next part. Till then, okay, salam.